हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी once again. So friends, in this video also we are going to continue with one of the questions of similarity. Okay, लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, I would request you all to watch the previous videos. Okay, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है आज का क्वेश्चन. In the given figure, the medians BD and CE of a triangle ABC meet at G. Friends, please note down carefully. क्या? Medians. Medians BD and CE. So I hope you all know what is the meaning of a median. Okay. In the previous videos also, I have discussed the meaning of median. Median क्या होता है मित्रों? Median is a line which joins the vertex to the midpoint of opposite side. ये देखिए, this BD is a line which is joining the vertex B और इसका opposite side क्या है? AC है. तो a line joining the vertex to the midpoint of opposite side. मतलब क्या मित्रों? मतलब D जो है ना, D is the midpoint of AC. अगर ये आपको पता नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ओके. सिमिलरली सीई क्या है? सीई इज आल्सो अ मीडियन. दैट मींस दिस इज अ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड. मतलब फ्रेंड्स ई क्या है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. ओके फ्रेंड्स, आगे क्या बोलता है वो देखिए. प्रूव दैट ट्राइंगल, मतलब हमें क्या फ्रेंड्स प्रूव करना है? This triangle EGD, you can see this is triangle EGD. This is our triangle EGD and this is our triangle CGB. यानी इन दोनों triangles को हमें क्या करना है फ्रेंड्स? इन दोनों triangles को हमें similar proof करना है. ओके. So before we go ahead with this question, let me tell you one thing जो कि शायद आपको पहले से पता हो. मित्रों, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा क्या? मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, बिकॉज अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा देन ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो क्या था मिड पॉइंट थ्योरम? जस्ट अ रिकैप. जिनको पहले से पता है वो तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो आप लोग ध्यान से देखिए क्या है. व्हाट वाज द मिड पॉइंट थ्योरम? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, a line joining the midpoints of any two sides. Let's say कि this is my triangle ABC. ठीक है, and let's say this is the midpoint of AB. Okay, and this is the midpoint of AC. Let's say this is P and let's say this is Q. So according to the condition क्या है? P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC. So a line joining the midpoints of any two sides. This is a line which is joining the midpoints of this side and this side. So according to midpoint theorem क्या होता है? This line is parallel टू द थर्ड साइड. ओके मित्रों, देखिए ये दोनों साइड्स हमने कंसीडर किया था क्या? मिड पॉइंट्स के लिए. ठीक है, तो थर्ड साइड कौन बचा? बीसी बचा. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, line joining the midpoints of any two sides. This is the midpoint of AB. This is the midpoint of AC. So this is a line joining the midpoint of any two sides. So this line will be parallel to the third side and also it will be half of the third side. मतलब क्या फ्रेंड्स? मतलब PQ, ठीक है ना, is parallel to what? Is parallel to BC and also PQ जो है ना वो क्या होगा? इज हाफ ऑफ BC. सो दिस वाज आवर मिड पॉइंट थ्योरम. तो ये आपको जानना काफी जरूरी है. नाउ वी कैन गो अहेड फॉर द क्वेश्चन. क्या बोलता है देखिए. वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो देखिए हमें क्या दिया है? दैट CE एंड BD क्या है? मीडियंस, राइट? दैट मींस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड आल्सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो हम तो कैसे स्टार्ट करेंगे? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and E is the midpoint of AB, isn't it? और आप रीजन क्या दे दोगे? इसके लिए आप रीजन दे दीजिए क्या? एज BD and CE are medians. Okay, friends. Since it's given that BD and CE are medians, then according to the definition of medians, B is going to be the midpoint of AC and also E is going to be the midpoint of AB. Okay. Now what? Now don't you think that this is a line, मतलब ED is a line joining the midpoints of two sides of a triangle. अभी हमने midpoint theorem में discuss किया था, right? A line joining the two points or the midpoints of two sides is going to be parallel to the third side and also half of the third side. तो वही हम concept यहाँ use कर रहे हैं क्या? ED is a line joining the midpoints of AB and AC. So don't you think this ED will be parallel to BC? Also this ED will be half of BC, isn't it? तो यहाँ आप लिखो क्या? ED is parallel to BC, isn't it? And also ED is equal to what? Half of BC. और इसका रीजन क्या रहेंगे फ्रेंड्स? मिड पॉइंट theorem. According to midpoint theorem, we say that what? This ED will be parallel to BC
and also ED will be half of BC. Okay. Now we can go ahead with what? This question, this subpart. Kya? How to prove this EGD is similar to CGB. Now we can prove that this triangle EGD is similar to triangle CGB. कैसे? तो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन. देखिए, दिस एंगल कौन सा? दिस एंगल, राइट? दिस एंगल यानी कि EGD, डोंट थिंक दिस इज इक्वल टू एंगल BGC. कैसे? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इजंट इट? तो पहला चीज तो ये मिल गया. दूसरा चीज क्या है मित्रों? देखिए, ये जो एंगल है, ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इजंट इट? क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. देखो ना, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है. हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है मिड पॉइंट थ्योरम से. और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है. सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल. रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स. इन द सेम वे, आप चाहते तो ये एंगल और ये एंगल को भी आप इक्वल प्रूफ कर सकते थे, ठीक है, बट हमें जरूरत नहीं है. हमें किसी भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था, isn't it? तो चलिए आगे कैसे बढ़े. नाउ वी कैन गो अहेड. कैसे? इन ट्रायंगल्स क्या? इन ट्रायंगल्स कौन सा? EGD. इन ट्रायंगल्स EGD एंड ट्रायंगल विच वन? आई थिंक CGB, राइट? EGD एंड CGB उसी ऑर्डर में लिख देते हैं. EGD एंड CGB एंड CGB मतलब दीज आर टू ट्रायंगल्स दैट वी आर कंसिडरिंग. सबसे पहले क्या है? एंगल EGD. एंगल EGD is equal to which angle? BGC, isn't it? एंगल BGC. और रीजन देना ना भूलें फ्रेंड्स, क्या? वर्टिकली opposite angles, isn't it? Because they are vertically opposite, they are equal. Then हमने क्या लिखा था? EDG यानी कि एंगल EDG will be equal to which angle? एंगल GBC. एंगल GBC. और रीजन क्या था फ्रेंड्स? ऑल्टरनेट एंगल्स, isn't it? तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हैं, तो हमने क्या किया है? हमने दो ट्रायंगल्स में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, isn't it? So don't you think these two triangles will be similar? Obviously. Therefore, triangle EGD is similar to triangle CGB, isn't it? Or by which rule? By AA test. Okay, by AA test or by AA rule, these two triangles are similar. Okay मित्रों, तो देखिए, ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, isn't it? Because हमें क्या करना था? ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था. कौन से? EGD एंड CGB. EGD एंड CGB देख सकते हैं आप. पहला पार्ट क्या था? ट्रायंगल EGD एंड CGB को हमें सिमिलर प्रूफ करना था, ठीक है. और ये ऑर्डर प्रॉपर है कि नहीं देख लीजिए. एंगल ई जो है ना, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का एंगल ही इस ट्रायंगल का एंगल सी बराबर है. तो ई के साथ हमने किसको लिखा है? सी को लिखा है, ठीक है. देन क्या लिखा है? जी. इस ट्रायंगल में जी और इस ट्रायंगल में जी क्या है? इक्वल है, तो हमने जी लिखा है. और ऑब्वियसली इस ट्रायंगल का डी और इस ट्रायंगल का बी इक्वल है, यानी कि ऑर्डरिंग इज ऑल्सो प्रॉपर, इजंट इट? तो देखिए मित्रों, हमने फर्स्ट पार्ट को क्या किया है? सॉल्व कर लिया. कैसे? बाय दिस ए टेस्ट. Triangle EGD is similar to triangle CGB. ओके मित्रों, नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड पार्ट. देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए. वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट? BG इज इक्वल टू 2 टाइम्स GD. BG जो है वो 2 टाइम्स GD है. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किए हैं, इजंट इट? सो कैन वी राइट द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स? तो पहला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा मित्रों? पहला होगा EG एंड CG. यानी कि मैं बोल सकता हूँ EG अपॉन CG will be equal to what? दूसरा corresponding sides क्या होंगे? GD and GB, यानी कि GD upon GB, isn't it? And third one will be what? PD and CB, यानी this will be equal to what? PD upon CB. ओके मित्रों, देखिए ये आपको बहुत आसान लगेगा. मे बी अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, तो मे बी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस. ओके, सो दैट दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है? वो देखिए, हमें प्रूफ करना है BG is 2 times GD. BG is 2 times GD. तो प्रूफ क्या है? We have to prove what? BG is 2 times GD, isn't it? यही था ना, एक बार देख लो. BG is 2 times GD. ओके, ये हमें प्रूफ करना है. अगर आप ध्यान से देखिए, ये BG कहाँ है? ये BG यानी GB बोल सकते हैं. और ये आपका है GD, isn't it? GD अपॉन GB is equal to ED अपॉन CB. देखिए मित्रों, हमने यहाँ पर क्या एक रिलेशन निकाला था बाय मिड पॉइंट थ्योरम. क्या? ED जो है ना, ED इज व्हाट? हाफ ऑफ BC. क्या? ED इज हाफ ऑफ BC. आर यू गेटिंग? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो,
From this, what we can write? We can write that 2 times ED, 2 times ED is equal to BC, isn't it? ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 into ED, 2 ED हो गया एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? BC। ये एक रिलेशन है मिला है किसका? ED और BC के बीच में। दैट मीन्स 2 टाइम्स ED इज इक्वल टू BC। देखिए यहाँ पर ये जो दो रेशियोज है ना, इसको मैं कंसीडर करता हूँ क्या? DG या GD जो भी लिखना है, GD अपॉन BG या GB वट एवर यू राइट इज इक्वल टू, देखो अब ED, राइट? ED, तो in place of ED, or let ED be like that only. Let ED be like that. In place of BC, can I write 2 times ED? देखो because हमने क्या प्रूफ किया? That BC जो है ना वो 2 times ED है। तो in place of BC, ये जो है क्या है? CB लिखा है मैंने, पर ये क्या है? BC है। So in place of BC, can I write 2 times ED? Obviously I can write. I will write here 2 times ED. Are you all getting, friends? This is 2 times ED। और यहाँ पे आप रीजन दे दो क्या? Since BC is equal to 2 times ED। ओके, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया। देखिए इससे क्या होगा मित्रों? ये ED और ED क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, isn't it? तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है फ्रेंड्स? देखिए हमें मिल रहा है GD अपॉन BG, राइट? GD अपॉन BG इज व्हाट? यहाँ ऊपर क्या बचा? 1, 1 अपॉन 2, isn't it? और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? BG into 1 is BG, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2 into GD, यानी कि 2 टाइम्स GD। ओके मित्रों, एंड आई थिंक यही हमें प्रूव करना था क्या? BG is 2 times GD। Can you see, friends? BG is 2 times GD and hence proved। ओके मित्रों, देखिए कितनी इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपको काफी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, isn't it? बट इससे पहले क्या है, हमें सबसे पहले मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट जरूरी था, isn't it? और दूसरा मीडियंस क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो फिर दिस सम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी इजी सम, isn't it? सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो मे बी उन्हें भी हेल्प मिल जाए, isn't it? तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक